Hello everyone, welcome to the daily Hindu analysis that we've been doing since 25th of June. And I'm really sorry for the past 3 days. I had to attend a conference due to which I couldn't take your sessions. But nevertheless, I'll make sure that in the future sessions that I take, I'm covering all the important things that happened in the past 3 days, right? And as we know, session becomes extremely important for the people who are appearing for this examination called as CLAT. Now, how does this add value to your CLAT examination? See, the passages that you would encounter in the CR and the English sections would be coming from your newspapers. Almost 60% of your passages would come from newspaper. Then it helps you directly in your GK portion, right? I don't have to explain it why newspaper becomes important for the GK section, because most of the passages that are coming are from your current affairs. Static के भी कुछ questions आते हैं, but mostly it is dominated by current affairs. Now, when we talk about the legal portion, you would find at least 10 marks of questions which would be using your legal current affair, which would be primarily covered through your newspaper. How does this session helps the CUET candidates? In your paper 3, which is your general aptitude test, GK is given directly. Also, once you start understanding these articles, you would start reading them also. You would find a lot of words which you won't be knowing, right? This would help enhance your vocabulary, which is directly mentioned in your paper 1, that is your language paper, right? Now people who are appearing for IPMAT, the integrated program in management, for that matter any sort of BBA entrance, or let's say JIPMAT, in a lot of exams, interviews have a key role to play. Let's say if you want to appear for IPM Indore, the 35% weightage to your selection would be given to your personal interviews, and these interviews shall revolve around you and the developments around you. Now, how do you understand the developments around you? You start studying the news paper. I hope I have told you sufficiently how newspaper sessions are gonna benefit you in all of these examinations, right? Chalo, not wasting any time, let us understand the first article. As 50% tariff begins, US Treasury Secretary says end of day we will come together. चलो तो ये समझने की कोशिश करते हैं. Also, what Donald Trump said is, called Modi and Pak said stop war or will make your head spin with tariff. चलो इसको जोड़ के पढ़ते हैं. चलो understand. 22nd of April, पहलगाम happens, है ना? पहलगाम इंसिडेंट होगा. 9th of May, India retaliates. India retaliates by the name Operation Sindoor. Chalo. Now, suddenly, after 3-4 days of war, Donald Trump comes up and says that he negotiated the war and asked both Pakistan and India to go for ceasefire. अब यहाँ पे ceasefire समझो, ceasefire मतलब war stop कर दो. चलो, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया, इसके कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ्स लगाना शुरू किए. नाउ व्हाट आर टैरिफ्स? टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्स. अपनी लोकल इंडस्ट्री को सेव करने के लिए बाहर से आने वाले गुड्स और सर्विस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाना. मतलब लेट्स से आप इंडिया में यू आर एबल टू मैन्युफैक्चर दिस पेन फॉर लेट्स से ₹20, बट विद बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर इंजीनियर्स and better manufacturing capacity, let's say US is able to manufacture at ₹10 only. Now US would try to sell this and dump it into the Indian market, and the Indian consumer would also want to buy this for ₹10. Why would I spend extra when I'm getting the same thing at ₹10? Now to save this industry, ये जो 20 रुपए का बना रहा है, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट तो इंडियंस को ही मिला हुआ है, इस वाले पेन में एम्प्लॉयमेंट यूएस के सिटीजन को मिला हुआ है, प्रॉफिट यूएस में जा रहा है, इधर प्रॉफिट इंडिया में आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंडिया में आ रहा है. तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कभी कभी प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, because for all of these reasons. Now when US will try to sell us something, we will impose heavy taxes on this product so that this product also becomes for rupees let's say 20 या 21. अभी इंडियन प्रोडक्ट बिके, इसी को बोलते हैं टैरिफ. जब आप एक कंट्री से लेट्स से, अच्छा एक चीज और है, टैरिफ्स आर ऑफ 2 टाइप्स, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. इसमें तो सीधे टैक्स लगाओगे, और इसमें यू विल फाइंड डिफरेंट रीजंस कि आप, मैं आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा बिकॉज आप चाइल्ड लेबर से ये काम कराते हो, मैं आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा क्योंकि आपके वहाँ पे लेट्स से तो ये प्लांटेशन में काम कर रहे हैं,
उस कम्युनिटी पे बहुत सारा एट्रॉसिटी होता है। जैसे एक बार यूएस ने नाइकी के प्रोडक्ट्स लेने से मना कर दिया था, बिकॉज दे सेड नाइकी जो कॉटन यूज़ कर रहा था वो यूगूर मुस्लिम्स बना रहे थे, एंड यूगूर मुस्लिम्स आर चाइनीज़, और जो मेनलैंड चाइना है वो इन पे बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ करता है। तो ये हो गए नॉन टैरिफ बैरियर्स। बेसिकली व्यापार होने से रोकना है अपने डोमेस्टिक लोगों को बचाने के लिए। अब इंडिया और यूएस में, यूएस का ट्रेड, इंडिया का ट्रेड सरप्लस था, विच मेंट इंडिया ज़्यादा बेचता था रादर देन बाइंग, सो इंडिया को फ़ायदा हो रहा था। दोनों ही देखते हुए हम पे टैरिफ लगाए, इनिशियली 25% के, और फिर कुछ प्रोडक्ट्स पे लगा दिए जाके 50% के, विच मेंट कि इंडिया से अगर 100 जा रहे हैं यूएस, तो अराउंड 55% प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस बढ़ जाएंगे, जिस वजह से यूएस में उसका प्राइस बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग वहाँ पे कम बाय करेंगे, और जब कम बाय करोगे तो इंडिया में मैन्युफैक्चर कम होगा, तो इंडिया में जॉब लॉस होगा, राइट, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी। तो इसके इतने लंबे इम्पैक्ट थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक स्टेटमेंट पास कर दिया कि भाई जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था ना, तो मैंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को फ़ोन लगा के बोला था कि वॉर रोक दो, नहीं तो मैं तुम पे इतने टैरिफ लगाऊंगा कि तुम्हारा सर चकरा जाएगा, विच ही सेड स्पिन ऑफ, तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा, इतने टैरिफ लगाऊंगा, जल्दी से वॉर रोक दो। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो, वी हैव कवर्ड दिस, डोनाल्ड ट्रंप को अभी नोबेल भी चाहिए, नोबेल पीस प्राइज़। और नोबेल पीस प्राइज़ कब मिलता है? जब आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करते हो, आप वॉर रुकवाते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स कम कराते हो। इसीलिए आपने देखा होगा कंबोडिया के प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल पीस प्राइज। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर मोदी जी एक बार स्टेटमेंट देंगे, दिस विल इंक्रीज हिज चांसेस ऑफ विनिंग द नोबेल पीस प्राइज, राइट। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है। अब इसी को देखते हुए जो यूएस के लेट्स से मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला है कि जल्दी से इंडिया एंड यूएस विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन, बिकॉज हमारे रिलेशनशिप बहुत पुराने और स्ट्रॉन्ग है, एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि इसमें कुछ चेंज हो सकते हैं या नहीं। फिलहाल आज की डेट से इंडिया पे 50% टैरिफ इम्पोज हो गया है, अभी तो 25% हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स पे 17 सितंबर से 50% इम्पोज हो जाएगा। मतलब आज की डेट में अगर कोई इंडियन प्रोडक्ट, अगर वो इन 55% प्रोडक्ट्स में आता है, यूएस में सेल होगा या फिर इम्पोर्ट होगा, तो बढ़े हुए टैरिफ मतलब 25% टैरिफ के साथ होगा। सो लेट्स से कोई चीज़ अगर $1 की आ रही थी यूएस में, तो आपको हो जाएगी $1.25। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट, वाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो।